بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامی اتہاس میں مکہ شہر میں موجود زمزم پانی کا کنواں اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، اور جب وہ زمزم پانی کا کنواں غائب ہوا اور پھر کس نے اسے واپس کھوج نکالا تھا اور وہ غائب کیوں ہوا، اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی۔ پیارے دوستو، زمزم پانی کے وہ میڈیکل فائدے جسے جان کر وگیان بھی حیران ہیں۔ زمزم پانی پر ایک جرمن سائنٹسٹ نے ریسرچ کی، تو اس ریسرچ کے بارے میں جان کر امریکہ حیران کیوں ہوا۔ اس ریسرچ میں ایسا کیا دیکھا گیا جس نے دنیا کو چونکا دیا تھا، اور زمزم پانی کا وہ حیران کرنے والا اتہاس جنہیں سن کر آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ اور دوستو، سب سے بڑا رہسیہ ہے کہ زمزم پانی آتا کہاں سے ہے اور یہ پانی آج تک ختم کیوں نہیں ہوا۔ تو آئیے جانتے ہیں زمزم پانی کے اتہاس کے بارے میں۔ دنیا میں بہت سے قسم کے پانی پائے جاتے ہیں، ہر پانی کا سواد الگ، اس کا رنگ الگ، اس کا گن الگ۔ ہر دھرم کا پوتر پانی بھی الگ الگ ہوتا ہے، اور سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پانی سب سے پوتر پانی ہے۔ مگر دوستو، شاید دنیا زمزم پانی کے چمتکار کو بھول گئی۔ میں یقین کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ دھرتی پر پائے جانے والے ہر قسم کے پانی میں زمزم پانی سب سے صاف، سب سے زیادہ گنکاری، سب سے زیادہ میڈیکلی فائدے والا اور چمتکاری پانی ہے۔ یہ بات میں اسلام کی بڑائی یا اترانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ آج کی اس ویڈیو میں میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اسلامی روایتوں کے مطابق آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ لے جانے کا حکم دیا۔ اس وقت مکہ پوری طرح سے بنجر زمین تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو کچھ کھجوروں اور پانی کے ساتھ مکہ چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ کچھ ہی وقت کے بعد جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا، تب اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ ماں پانی کی تلاش میں بے چین پھرنے لگی۔ تبھی اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور پھر کرشمہ ظاہر ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تڑپ سے پیروں کو زمین پر مار رہے تھے، تبھی وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ ماں بیٹے نے پانی پی کر پیاس بجھائی۔ آج یہی چمتکاری پانی زمزم پانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، زمزم پانی کی وجہ سے اس جگہ پر آبادی پھلنے پھولنے لگی، اور ایک قبیلہ جسے قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے وہ وجود میں آیا۔ اس قبیلے نے زمزم کنویں پر قبضہ کر لیا اور باقی لوگوں کو، مسافروں کو زمزم پانی پینے سے روک دیا۔ مگر دوسرے باقی قبیلوں نے مل کر جرہم قبیلے کو مکہ سے نکال دیا، جس کے بعد زمزم کنواں سوکھ گیا اور غائب ہو گیا۔ ہزاروں سالوں تک زمزم کنواں غائب رہا، مگر جس وقت دنیا کی سب سے مہان ہستی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، اسی وقت اللہ نے زمزم کنویں کو واپس ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے اپنے محبوب سے محبت تو دیکھو۔ روایتوں کے مطابق عبد المطلب، جو قریش قبیلے کے لیڈر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اللہ نے ان کو سپنے میں زمزم کنویں کو تلاش کرنے کا پیغام دیا۔ کچھ دنوں کی تلاش کے بعد کعبہ کے ایک دم قریب ہی ان کو زمزم کنواں مل گیا، جس کے بعد پورے مکہ میں پانی کی قلت ختم ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے، آج سے 1500 سال بعد بھی یہ کنواں چلتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عباسی خلیفاؤں نے وقت وقت پر زمزم کنویں پر کمرے یا گنبد بنا کر اسے کور کیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں بھی زمزم کنویں کی حفاظت کے لیے کئی طرح کے تعمیراتی کام کیے گئے تھے۔
सल्तनत उस्मानिया में जमजम कुएं पर एक आदमी को खास तौर से रखा जाता था जो लोगों को कुएं से पानी निकाल निकाल कर देता था। सन 1964 तक जमजम कुएं पर कई तरह की बिल्डिंग्स बन चुकी थी और उधर धीरे धीरे हाजियों की तादाद भी बढ़ने लगी थी। जमजम कुएं पर बने मकानों की वजह से हाजियों को तवाफ करने में परेशानी होने लगी थी। इसीलिए सन 1964 में सऊदी गवर्नमेंट ने जमजम कुएं पर बनी सारी बिल्डिंग्स को हटा दिया और कुएं को बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। कई सालों तक लोग यहाँ जमजम पानी से वुजू करते और नहाते थे, मगर बाद में सऊदी हुकूमत ने तवाफ में परेशानी के सबब इसे भी बंद कर दिया और फिर पाइपलाइन के जरिए जमजम पानी निकाला जाने लगा। दोस्तों, आपके मन में अब ये सवाल ज़रूर पैदा हो गया कि आखिर ये जमजम पानी आता कहाँ से है। चलिए शुरू करते हैं जमजम पानी के बारे में वो हैरान करने वाली बातें जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, जमजम पानी का कुआं काबे के करीब ही सिर्फ 21 मीटर की दूरी पर है और ये कुआं 31 मीटर गहरा है। जमजम कुएं में पानी आम कुओं की तरह जमीन से नहीं आता, बल्कि मक्का में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पहाड़ियों की महीन दरारों से बहता हुआ इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। पहले जमजम पानी बाल्टी से निकाला जाता था, लेकिन अब जमजम कुएं में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले 2 बड़े बड़े पंप लगा दिए गए जो 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं। ये पंप इतने पावरफुल है कि हर एक पंप सिर्फ 1 सेकंड में 18 लीटर जमजम पानी निकालता है। जमजम पानी एक बड़े पाइपलाइन के जरिए 5 किलोमीटर दूर स्थित किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर प्रोजेक्ट कुदई तक पहुंचाया जाता है। यह जमजम पानी की देखरेख और स्टोरेज किया जाता है। आप हैरान होंगे, इस जगह पर एक साथ 1 करोड़ लीटर जमजम पानी स्टोर किया जाता है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में मौजूद दूसरे प्लांट में 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी जमजम का स्टोर किया जाता है। इन दोनों प्लांट से जमजम पानी बड़े बड़े टैंकरों और ट्रकों में भरकर मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है नॉर्मल दिनों में मस्जिद नबवी में सिर्फ एक दिन में 1.5 लाख लीटर जमजम पानी का इस्तेमाल होता है। वही रमज़ान और हज के महीने में ये मिकदार 4 लाख लीटर तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मस्जिद हरम में नॉर्मल दिनों में तकरीबन 7 लाख लीटर और रमज़ान व हज के महीनों में 20 लाख लीटर जमजम पानी सिर्फ एक दिन में इस्तेमाल होता है। अब आप महीने और साल का अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। तकरीबन 500 लोग मस्जिद हरम में और 500 ही लोग मस्जिद नबवी में सिर्फ जमजम पानी के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, तकरीबन 40,000 छोटे कूलरों में जमजम पानी भरकर जगह जगह रखे जाते हैं ताकि ज़ायरीन बिना मशक्क़त के जमजम पानी पी सकें और पानी पीने के लिए हर दिन तकरीबन 20 लाख डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल होते हैं। इन कूलरों की सफाई इतनी बेहतरीन तरीके से होती है कि आपके घर के बर्तन भी इनके सामने मेले लगने लगे। इन कूलरों की सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि कोई इसमें नुकसानदेह चीज़ ना मिला दे। जिन जगहों पर इन कूलरों को नहीं पहुंचाया जा सकता, वहाँ वर्कर अपने कंधों पर जमजम पानी के कूलर लाद कर ज़ायरीन को जमजम पानी पिलाते हैं ताकि जब लोगों को प्यास लगे तो उनको तवाफ बीच में छोड़कर ना जाना पड़े। इसके अलावा छोटी छोटी बोतलें भी लाखों की तादाद में हर रोज़ ज़ायरीन को बांटी जाती है। एडवांस प्रोग्रामिंग के तहत जमजम पानी के सफ़र की मॉनिटरिंग भी की जाती है। हरमैन शरीफैन में काफ़ी जगहों पर जमजम पानी के नल भी लगे होते हैं ताकि लोग यहाँ से ये करिश्माई जमजम पानी पी सके। इसके अलावा एक एरिया ख़ास तौर से तैयार किया गया है जहाँ से जिसका जितना मन करे उतना जमजम पानी भर कर
अपने साथ ले जा सकता है। इतना ही नहीं, सऊदी गवर्नमेंट ने हज और उम्रा करने वाले हर मुसलमान को 5 और 10 लीटर जमजम पानी से भरी बोतलें गिफ्ट करती है और हर दिन तकरीबन 15 लाख बोतलें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और इतनी ही बोतलें स्टोर करके भी रखी जाती है। अल्लाहु अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक कुएं से हर दिन लाखों लीटर पानी निकाला जाता है, मगर फिर भी इस कुएं में पानी खत्म नहीं होता। ये आज से नहीं, पिछले 1400 सालों से लगातार होता आ रहा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी आबे ज़मज़म है। ये भूखों की भूख मिटाता है और बीमारी में शिफा देता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ज़मज़म पानी जिस नियत से पिया जाए उससे वही फायदा हासिल होता है। जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर नट फीफर ने ज़मज़म के पानी पर अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि इसे पीने से ह्यूमन सेल्स में गजब की एनर्जी मिलती है। ज़मज़म के अलावा शायद ही कोई ऐसा पानी होगा जिसमें बैक्टीरिया ना हो। इसके विशेषज्ञ डॉक्टर यहया कोशक का ये कहना है कि ये पानी हर तरह की अशुद्धता यानी इम्प्यूरिटी से आज़ाद है। इसे अल्ट्रावायलेट रेस की टेक्नोलॉजी से जांचा गया, जिसमें ये पाया गया कि इसमें किसी भी तरह की बैक्टीरिया होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसको पीने से शरीर की इम्यूनिटी इफिशियंसी सुधरती है, WBC और रेड BC सेल्स में बढ़ोतरी होती है। साथ ही ये शरीर से जहरीले चीजों को भी बाहर निकालता है। आंखों को इस पानी से धोने पर बहुत से आंख से रिलेटेड रोग ठीक हो जाते हैं और इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। ये पानी अल्कलाइन नेचर का होता है, जो पेट में गठित अतिरिक्त एसिड को इनएक्टिव करता है, जो हाइपर सेंसिटिविटी और हार्ट डिजीज के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। ज़मज़म का पानी दांतों पर लगने वाली कैविटीज को रोकने में मदद करता है। ज़मज़म पानी पीने से कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती है। ज़मज़म कुआं लगभग 30 मीटर गहरा है, जिसमें 13 मीटर पानी और 17 मीटर तक चट्टानें हैं। ज़मज़म के पानी का कोई रंग नहीं होता और ना ही इसमें से कोई बदबू आती है, लेकिन फिर भी इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम काफ़ी होता है, जिसे पीने से हेल्थ को कई फायदे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज़मज़म का पानी पीने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया, ये वीडियो, ये मालूमात आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़मज़म पानी का ये जो चमत्कार है, ये जो मोज़ज़ा है, अल्लाह ताला ने किस नबी के ज़रिए वजूद में लाया यानी ज़ाहिर किया, तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसका भी सही आंसर होगा उसका हम स्क्रीनशॉट लेकर अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।